Welcome to my channel CA Joyam, and the first update regarding updated ITR launched for financial year 2021-22 by CBDT. Go through the slides for knowledge on ITR U. Good morning, happy new calendar year 2023. Back with the first update of this year 2023. Yesterday, the Income Tax Department has launched the new form ITR-U, that is updated ITR for financial year 21-22. It is available on the portal. ITR-U को लेके मैंने पहले भी कवरेज किया हुआ है, तो मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. प्लस मेरा पिक्टोरियल वॉइस ओवर है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, माई फेवरेट ईजीएस्ट वे. Now, one, if you have missed the deadline of filing the ITR, belated ITR, revised ITR का deadline था 31st December 2022 for financial year 21-22, assessment year 22-23. ओके, अब वो मिस कर गया, डेट तो एक्सटेंड नहीं हुआ. तो अगर आपको नया रिटर्न भरना है या अपना इनकम रिवाइज करना है अपवर्ड, या कोई लॉसेस कम करना है, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कम करना है, या रिफंड एडजस्ट करवाना है टू अ लोअर अमाउंट, देन यू कैन फाइल ITR, अपडेटेड ITR. अब ये जो ITR U का कंसेप्ट आया है, दैट हैज कम इन द यूनियन बजट ऑफ 2022, दैट इज इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1st April 2022. तो इसका टाइम लिमिट है विद इन 2 years ऑफ द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. तो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 1920 का ITR आप अपडेट कर सकते हैं till 31st March 2023, then 2021 का 31st March 2024 and current year का till 2025, right? That is 22-23 can be updated till 2025. पर अभी कर देंगे तो अच्छा है, क्योंकि टोटल टैक्स के ऊपर अगर 12 महीने के अंदर आप अपडेट कर रहे हैं, 2 साल का टाइम है ना, पहले 12 महीने में 25% एडिशनल टैक्स है, दूसरे वित्तीय वर्ष में अगर कर रहे हैं मतलब 24 महीने के अंदर, तो आपको एडिशनल टैक्स 50% है. बट you have to keep one thing in mind. ITR updated can be filed only if benefits the department and the government. आप अपना बेनिफिट के बारे में सोच नहीं सकते हैं. एडिशनल टैक्स पेमेंट आएगा, रिफंड कम होगा, लॉसेस कम होगा, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कम होगा, रेट ऑफ टैक्स चेंज करना है, तो आप ITR-U भर सकते हैं. जिन्होंने नहीं भरा है वो भी भर सकते हैं. जिन्होंने ऑलरेडी भर दिया ITR और रिवाइज करना है with the upward tax amount, they will be able to file a updated ITR. So you have to keep these things in mind while filing this return. Now all these points are covered, tax ka calculation ka methodology and some other points which I have covered in the PowerPoint presentation with my pictorial voiceover. Hope you enjoy the knowledge sharing. Have a wonderful weekend. Today is the first day of the week. Be positive throughout the year. Work towards a successful goal and do well, be at peace, be happy. Have a nice day and see you with more such videos. Good morning. The first new update of calendar year 2023. It is regarding this updated ITR, that is ITR-U. The concept was launched in Union Budget 2022. अगर आप भूल गए हैं कोई ना कोई इनकम रिपोर्ट करना और यू हैव मेड अ मिस्टेक इन योर ITR, देन यू आर अलाउड टू फाइल अ अपडेटेड ITR. ये 2 साल के अंदर भरना पड़ता है, जो कि हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. It is to be calculated from the end of the year in which original return is filed. Any person who has made an error or omitted certain income details in ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम अगर फाइल किया होगा तब भी, या नहीं किया तो पूरा ही रिवाइज कर सकते हैं. बिलेटेड रिटर्न में कोई मिस्टेक किया या रिवाइज रिटर्न में मिस्टेक किया तो आपको एक और मौका दिया जा रहा है असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल के अंदर कि आप उसको अपडेट करें इनकम टैक्स पोर्टल पे, दैट इज अपडेटेड ITR. Now when can you file the updated ITR? If you have not filed the original ITR, missed return filing deadline and the belated return का भी deadline file नहीं किया, तो आप updated ITR कर सकते हैं. Income is not declared correctly. You have chosen the wrong head of income. House property होना चाहिए, आपने capital gain में डाला. ये capital gain है, आपने business income में डाल के calculate किया, then you can file a updated ITR. टैक्स रॉन्ग रेट से कैलकुलेट किया. फॉर एग्जांपल, यू गॉट अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेपरेट रेट ऑफ 20%,
और आपने उसको शॉर्ट टर्म में 10% का रेट लगा के टैक्स पे किया, तो आप अपना ITR अपडेट कर सकते हैं. When you want to reduce the carry forward loss, to reduce the unabsorbed depreciation, and to reduce the tax credit under MAT or your second new regime of income tax. ये सब का तात्पर्य, the meaning of all this is that the updated ITR should benefit the government. It should benefit the income tax department, which means you cannot do it for your own benefit. You have to make the declaration which will result in a tax payment to the government. This is the meaning of all these changes being made in the updated ITR. Now you cannot file the updated ITR in when the updated ITR is already filed. For filing a nil return or loss return, मतलब मैंने कहा ना, जो आपको डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा तभी आप ITR अपडेट कर सकते हैं. आपके बेनिफिट फिर से कुछ ये करने के लिए आप नहीं कर सकते. You cannot file updated ITR U for claiming enhancing the refund amount when updated return results in a lower tax liability, or a search proceeding under 132 has been initiated, a survey is conducted under section 133A, और books and documents or assets are seized. तो आप अचानक सोचते हैं मैं पकड़ा जाऊंगा, उसके पहले ITR अपडेट कर देता हूं. नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो आपको बेनिफिशियल है. फिलहाल आपको ITR अपडेट तभी करने मिलेगा अगर गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट को बेनिफिट हो रहा है. अगेन, it cannot be filed if assessment, reassessment, revision और recomputation is pending. मतलब already आपको notice issue हो चुका है. And if there is no additional tax outgo, again I repeat, if it is beneficial to the department and government and tax is payable, you can file a updated ITR. What is the time limit to file the ITR? It is 24 months from the end of the relevant assessment year. It is applicable from 1st April 2022. So during the current financial year 2022-23, you can file ITR-U for assessment year 2020-21 and assessment year 2021-22, क्योंकि ये लॉन्च ही किया गया इस साल 2022 के बजट में और लागू है 1 अप्रैल 2022. जबकि एग्जाम्पल के तौर पे आप लास्ट अपडेटेड ITR कब कर सकते हैं? रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 कैन बी अपडेटेड टिल 31/3/2023. बराबर है, मतलब आप 2 साल तक के अपडेट कर सकते हैं. एडिशनल टैक्स वो तो लगेगा ही, मैंने कहा ना, बेनिफिशियल है गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को तभी आप इसको फाइल कर सकते हैं. You will have to pay additional tax of 25 or 50% on the tax amount, depending on when you file the ITR-U. अगर आप 12 महीने के अंदर अपडेट कर रहे हैं तो 25% जो नॉर्मल टैक्स आएगा उसका कैलकुलेशन में दे रहा हूं, 25% एडिशनल पे करना पड़ेगा. एंड विद इन 2 years, that is 24 months, you will have to pay additional tax of 50%. Okay. Now आप वेरीफाई कैसे करेंगे ITR-U को? फॉर नॉन टैक्स ऑडिट केसेस डिजिटल सिग्नेचर यूज कर लीजिए. फॉर टैक्स ऑडिट केसेस इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, दैट इज EVC यूज कर सकते हैं. अब टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे? फर्स्ट, टैक्स पेएबल ऑन एडिशनल इनकम एज पर मॉडिफाइड ITR, राइट, प्लस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल इनकम, मतलब 234A B C ये सब ऐड होगा, ये एडिशनल इनकम टैक्स पे. लेट फीस जो पहले 5,000 था अभी 10,000 हो गया, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, 5 का 10 पे करना पड़ेगा अगर आप रिटर्न नहीं भरे होंगे तो टाइम पे, और नया रिटर्न भर रहे ITR-U में तो 10,000 है. प्लस टैक्सेस पेड और रिलीफ ऑफ TDS और रेगुलर असेसमेंट जो आपको मिला है वो ऐड करिए. जो रिफंड मिल गया है आपको, टोटल रिफंड इश्यूड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन रिफंड एज पर ओरिजिनल रिटर्न इफ एनी, प्लस एग्रीगेट टैक्स, मींस ये सब का टोटल एग्रीगेट टैक्स लाइबिलिटी पे आएगा. पॉइंट F, दिस इज द एग्रीगेट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, देन एग्रीगेट टैक्स लाइबिलिटी, राइट.
ये टोटल अमाउंट पे 25% और 50% एडिशनल टैक्स, ये पहले स्लाइड में बताया ना, 1 साल के अंदर अपडेट कर रहे तो 25, 2 साल के अंदर कर रहे तो 50। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, दिस इज द एग्रीगेट टैक्स लाइबिलिटी। On this you have to calculate additional tax of 25 or 50%, फिर net tax amount payable है, correct? So this is the net tax amount payable as per ITRU, that is updated ITR। मतलब एंड में अगर डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा है तो आप ITRU फाइल कर सकते हैं, आप अपना बेनिफिट के लिए ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। दिस इज वी हैड डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो ऑल्सो, बट ये थोड़ा और मैंने थ्रेड बेयर आपसे डिस्कस कर लिया है, सो यू कैन टेक इफेक्ट ऑफ दिस।